Hello everyone. Today we are going to discuss economic order quantity, and this topic is a part of inventory management, uh, or the decision related to keep inventory of raw materials. So under inventory management, especially under the costing section of inventory management, management has to decide the optimum size of inventory, what to keep, and for that purpose, there are several methods to to calculate the optimum size of inventory. One of them is economic order quantity method. And see, there are basically there are two kind of cost, um, ordering cost and storage cost. And basically, the ordering cost is say per order cost, that is ordering cost. For example, if you need one book, uh, so you go to Raigad and come back with the one book. So for example, you incurred 200 rupees going Raigad and then coming back. So you incurred 200 rupees to purchase one book. If instead of that you have purchased 100 of books, maybe you have to incur same amount of money, 200 rupees to go to Raigad and come back. So there are two kind of cost. One is ordering cost, that you have to incur per lot. So every lot company will incur this cost, and that is known as ordering cost. On the other hand, we have holding cost or storage cost. If you keep more numbers of inventory with yourself, you need to incur more cost. If you keep less inventory, you need to incur less cost. So these two kind of cost of inventory, one is holding cost and other is one is holding cost and other is ordering cost. The nature of both these costs is significantly opposite. So if you order more in quantity, you have to incur less ordering cost. For example, 200 किताबें आपने मंगवा ली रायगढ़ से एंड 200 रुपए ही खर्च हुए, तो पर यूनिट कॉस्ट आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो गया, 1 रुपए पर बुक. लेकिन स्टोरेज कॉस्ट, फॉर एग्जांपल, आपके पास रखने के लिए स्पेस, एक टेबल में सिर्फ 5 किताबें ही रखी जा सकती है, तो अब आपको 20 टेबल खरीदनी पड़ेंगी. माफ कीजिएगा, 200 है तो 40 टेबल खरीदनी पड़ेंगी जिसमें आप वो 5-5 किताबें रख सकें. तो होल्डिंग कॉस्ट आपकी बढ़ गई. सो होल्डिंग कॉस्ट विथ मोर इन नंबर्स, इफ यू हैव more in numbers, so there is more ordering cost, and if you have less in numbers, you will have to say less holding cost. For example, this, okay, for example, if you incur this much of quantity, okay, so total holding cost is this much. Sorry, this is per unit holding cost. Remind this, not total, per unit. And per unit ordering cost is this much. So the total cost is, if you sum it, so ordering cost is this much and holding cost is this much. So total cost that you have to incur is say origin को मैं 0 मानूं, इसको मैं OC कर देता हूं, तो कुछ नाम दे देते हैं. Let's have a eraser. इसको मैंने दे दिया C. So the total cost will be OC plus OH. Okay. Similarly, if you demand this much of quantity, say Q2, you will have to incur this much of cost. You have to incur, say, this much of cost. Okay, so let's have this A, let's say B. So OA, that is holding cost, and OB, that is ordering cost. So again, the cost is more. So there is a situation where there is a least cost, incurred, and that situation is the point where these two, holding cost and ordering cost, intersect each other in this graph, as you can see. So the
if you draw the cost curve, total cost curve, or the sum total of these two, the cost curve will look something like this. So this is the point where the where your total cost is least, है ना? So this point is known as economic, or say this quantity is known as economic order quantity, EOQ. Okay, this will known as EOQ. Okay, so let's have this. Let's have the practical part of this numerical. Okay, let's understand with the numerical part, or practically we need to understand this. So say number of unit, a firm having demand of 1600 unit, annual demand of 1600 unit, and if firm order or place his order, so it's also known as placement cost. So this is say 200 or say 100 rupees per order, 100 rupees per order. And on the other hand, there is holding cost, or known as storage cost. So storage cost is ₹8 per unit. So we need to understand in which sense we have given this numbers. Okay, so 1600 is a unit. So annual usage, the total amount of raw material that firm is required is 1600 unit. Okay, whereas the number need to this is per order cost, or when you order one lot, that lot will incur 100 rupees of cost. In this, you can purchase all of the 1600 unit. So if you purchase all of 1600 unit for in once in a one lot, so you need to incur only 100 rupees. This is the best situation. If you order 800 unit, so in a year you will have to order 2 times, and that will take 200 as a ordering cost or placement cost. If you order 400 unit at once, so you need to order 4 times, and that will have 400 ordering cost. तो यहाँ पर कोई भी आप लोग कह सकते हैं कि सर एक ही बार में सब मंगवा लेते हैं, अच्छी बात है, एक ही बार में सब मंगवा लीजिए। लेकिन क्या एक ही बार में मंगवाने पे हम लीस्ट कॉस्ट इनकर कर रहे हैं? लेट्स चेक। क्योंकि दूसरी तरफ हमारे पास और क्या है, होल्डिंग कॉस्ट, और होल्डिंग कॉस्ट कितना है, 8 रुपीज पर यूनिट। तो एक ही बार अगर सारा मंगवा लेते हैं तो इसको होल्ड करने के लिए 8 रुपए का खर्च आपको आएगा। देखिए कितना खर्च आ रहा है एक ही बार में, मतलब 1600 को इस स्टोर करने के लिए इतना बड़ा कमरा अपने को रखना पड़ेगा, जिसमें पर यूनिट अपने को 8 रुपए का खर्च आएगा, है ना। देख लीजिए 12,800 रुपए आपको लग जाएगा होल्डिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। तो फिर ये सिचुएशन सही नहीं है जब हम सारा ऑर्डर करते हैं एक ही बार में। वी नीड टू फाइंड आउट कि कितना करना चाहिए एक बार में, और इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे एक एग्जांपल से। इसको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल करते हैं। फॉर से नंबर ऑफ यूनिट, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं नंबर ऑफ यूनिट बोल रहा हूं, तो आप वो लिख लीजिएगा, उसको मैं n से डिनोट कर रहा हूं, 1600।
तो कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर, इसको आप लिख दीजिएगा नंबर ऑफ ऑर्डर, सिर्फ एक बार ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कितना आएगा, एक ही बार। अच्छा, अब आपने 1600 यूनिट रख लिया। अब 1600 यूनिट को पूरे साल तो नहीं रखना है, वो तो पहले ही दिन से इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये जानकारी नहीं है कि कितनी यूनिट पर डे है। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने 1600 ऑर्डर किया, 1600 आके मेरे इन्वेंट्री में रख गया, कल मैंने उसमें से 5 इस्तेमाल कर दिया, तो अब मेरे पास इन्वेंट्री में सिर्फ 1595 ही है। अगले दिन मैंने और 5 इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद अब मेरे पास 1590 है, एंड सो ऑन, सो इट विल गो ऑन डिक्लाइनिंग। ओके, सो वी डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर एक सेफ साइड लेने के लिए हम एवरेज क्वांटिटी रख लेते हैं कि कितनी हमारे पास एवरेज क्वांटिटी जो हमेशा बनी रहती है, जिसको स्टोर करना ही करना है। तो एवरेज क्वांटिटी बहुत ही आसान है, जो आपका ऑर्डर लेवल है अपॉन 2। ठीक है, तो इससे हम मान सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 1600 अगर हम एक बार में बुलाते हैं, तो साल भर मेरे पास एवरेज 800 अपने को रखना पड़ता है। ओके ओके, सिमिलरली अगर आप 800 ऑर्डर करें, तो एनुअल डिमांड 1600 का है, उसको पूरा करने के लिए आपको 2 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको 200 रुपये लगेगा, और एवरेज इन्वेंट्री यू नीड टू कीप इससे 400, है ना। ऐसे ही कर लेते हैं। अगर 400 ऑर्डर करें तो यू नीड टू ऑर्डर 4 टाइम्स, as your annual demand is 1600, you will need to incur 400 ऑर्डरिंग कॉस्ट, और यहाँ पर आपके एवरेज इन्वेंट्री जो बनी रहेगी साल भर वो 200 यूनिट। अगर आप 200 करते हैं, so you need to order 8 times, you will have to incur 800 cost, and average quantity जो आपको 100 रखनी पड़ेगी। अगर आप 100 ऑर्डर करते हैं तो 16 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। यहाँ आपको कॉस्ट लग जाएगा लगभग 1600 रुपये, और यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री आप 50 रहेगी। अगर आप 80 यूनिट ऑर्डर करते हैं, यू नीड टू ऑर्डर 20 टाइम्स, यहाँ 2000 रुपये का खर्च आएगा, और एवरेज इन्वेंट्री 40। अभी एवरेज इन्वेंट्री क्यों निकाला, टू फाइंड आउट द स्टोरेज कॉस्ट। ओके, स्टोरेज कॉस्ट। सो एवरेज हम मानकर चल रहे हैं कि 800 यूनिट मुझे रखने की हमेशा व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी, उसका कॉस्ट हमेशा आएगा, क्योंकि फर्स्ट डे हमने अगर इस्तेमाल कर लिया है 10 यूनिट का, तो उसका कॉस्ट 0 है, और जो लास्ट डे इस्तेमाल कर रहे हैं साल के, उसका पूरा का पूरा 8 रुपये कॉस्ट है। इसलिए एवरेज हमने कर लिया एक नंबर पाने के लिए। ओके, सो इसमें मैंने कहा था कितना, 8 रुपीज पर यूनिट। सो 800 into 8 rupees, so you need to incur 6400 as a storage cost। in this case 3200, 8 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 1600, then 800, then 400, and then 320। ओके, तो आप यहाँ पर कॉस्ट अगर देखो, टोटल स्टोरेज कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे 6500 रुपये खर्च होगा। यहाँ पर 3400, यहाँ पर 2000, in this case 1600, in this case 2000, in this case 2320 rupees। so this is the situation where you have to incur least cost। और आप यहाँ देखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट मेरा बराबर है, जैसा हमने ग्राफ में भी डिस्कस किया था, है ना। हमारे पास ग्राफ जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था, वहां पर भी ग्राफ में आप देखे थे कि ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ये हमारा होल्डिंग कॉस्ट है, और ये दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहा है, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू इनकर लीस्ट कॉस्ट, isn't it? And that is why
दैट इज वाई दिस इज द सिचुएशन जहां पर ये लीस्ट कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब करता हूं। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो सिचुएशन है जहां पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट के बराबर है। ओके ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट जहां स्टोरेज कॉस्ट के बराबर है। अब आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ एनुअल यूसेज जो हमारा 1600 रुपए का था, 1600 यूनिट था, अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनुअल यूसेज ठीक है, AU OQ क्या हो गया? ऑर्डर क्वांटिटी, और OC क्या हो गया? पर या पर लॉट का जो कॉस्ट है, या इसको कहते हैं पर ऑर्डर कॉस्ट। ये बराबर होना चाहिए हमारे स्टोरेज कॉस्ट के। स्टोरेज कॉस्ट क्या है? हमारा एवरेज इन्वेंट्री, जिसको हम ये लिख रहे हैं, है ना, ऑर्डर क्वांटिटी का हाफ, और पर यूनिट हमारा स्टोरेज कॉस्ट, इसको S लिख रहा हूँ मैं, है ना, और इसको स्टोरेज कॉस्ट करना चाहिए। अब आप इसको रीसफल करेंगे तो दिस मल्टीप्लाई विद दिस OQ का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज द ऑर्डर क्वांटिटी दैट वी नीड टू फाइंड आउट, है ना, एंड दिस 2 will come this side in multiplication to this, and S will come to the denominator this side, so it will look like 2 annual usage multiply by ordering cost, okay, 2 divided by S storage cost is equal to OQ square। ओके, और मेरे पास जगह कम है तो मैं यहीं पे अब रब करके आगे बढ़ रहा हूँ। दिस स्क्वायर विल if come this side it will look like this, so this is the formula for economic order quantity, root under 2 multiply by annual usage मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब एक बार ऑर्डर कर रहे हैं तो आपकी एक लॉट साइज ऑर्डर करने की क्या कॉस्ट है, वो है अपना OC है, डिवाइडेड बाय स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट क्या है? आपकी पर यूनिट स्टोरिंग कॉस्ट, एक एक यूनिट को आप स्टोर करते हो तो उसके लिए कितना खर्चा आता है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी नीड टू डिस्कस। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो EOQ इज रूट अंडर 2 into एनुअल यूसेज मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट अपॉन स्टोरेज कॉस्ट। तो अब आपका एनुअल यूसेज रॉ मटेरियल का अपने को चाहिए होगा, तो ये हमेशा पर एनम में दिया रहेगा। अगर मैं एग्जाम में आपको मंथली देता हूं तो उसको पर एनम बनाने के लिए इंटू 12 कर दीजिएगा। अगर मैं वीकली देता हूं तो उसको पर एनम बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 52 कर दीजिएगा। सो एक्चुअली इन दिस केस वी नीड पर एनम क्वांटिटी, और ये हमेशा क्वांटिटी में रहेगा। ये फिगर किस में रहेगा? क्वांटिटी। अगर मैंने आपको दे दिया कि एक साल में 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, 1 लाख रुपए का, और पर यूनिट रॉ मटेरियल 10 रुपए का है, तो यहाँ पर आपका सिचुएशन क्या हो जाएगा? 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 10 रुपए पर यूनिट का रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल की जो यूनिट है वो कितनी होगी? 10,000। ओके, सो 10,000 विल बी पुट, यू विल पुट इन दिस फॉर्मूला, क्योंकि हमको हमेशा एनुअल यूसेज किसमें चाहिए? रुपीज में नहीं चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं हमारा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं बार बार डिलीट कर रहा हूं, आप लोग लिखते चलिएगा। ओके, सो एनुअल यूसेज अपने को क्वांटिटी में चाहिए और वो भी पर एनम चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये सिंगल कॉस्ट काइंड ऑफ थिंग है कि एक बार आपने ऑर्डर किया,
एक बार मैंने ऑर्डर प्लेस किया, तो ऑर्डर प्लेस किया तो मुझे अब वो 200 या 500 या 4000 2000 जो भी है ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार मेरे को लगेगा। अब वो चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो, दैट विल बी द सिंगल कॉस्ट, है ना, उसको क्वांटिटी से लेना देना नहीं है, दैट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट हमेशा अपने को किस में चाहिए, पर यूनिट पर एनम। स्टोरेज कॉस्ट किस में चाहिए होगा, पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को एक साल तक रखने के लिए कितना पैसा खर्च होता है पर यूनिट। अगर मैंने एग्जाम में दे दिया कि टोटल स्टोरेज कॉस्ट 10,000 रुपीज है 10,000 यूनिट के लिए एक साल का, तो 10,000 यूनिट अपॉन 10,000 रुपीज, पर यूनिट कितना हो गया, 1 रुपए। सो स्टोरेज कॉस्ट विल बी 1 रुपीज। दूसरा, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टोरेज कॉस्ट इज से 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आपसे ये बोल दिया गया। तो रॉ मटेरियल अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का है, तो इसका 10% इसको स्टोर करने में खर्च होता है, यानी कि अगर 100 रुपीज का माल आप खरीद कर लाते हैं तो 10 रुपए उसको स्टोर करने में लगेगा, है ना। तो स्टोरेज प्लस रॉ मटेरियल का प्राइस अगर मिला दे तो 110 रुपए का हो गया। सो कई बार परसेंटेज में दिया रहेगा, कई बार डायरेक्टली दिया रहेगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में चाहिए अपने को, पर यूनिट पर एनम के फॉर्म में चाहिए। ये किस फॉर्म में चाहिए, सिंगल कॉस्ट है एक बार। ये किस फॉर्म में चाहिए, क्वांटिटी के फॉर्म में चाहिए, जो पर एनम का बता रहा है, एक साल के यूसेज बता रहा है, ठीक है। चलिए अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं और उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं जो अभी हमने बनाया था टेबल फॉर्म में। तो वो टेबल फॉर्म में तो वो समझाने के लिए था, उस फॉर्म में आपको नहीं बनाना है, आप इस तरह से बनाएगा। एनुअल यूसेजेस से 1600, ओके। ऑर्डरिंग कॉस्ट इससे 100 रुपीज पर लॉट, 100 रुपीज पर लॉट लिख लीजिए आप। नेक्स्ट इज स्टोरेज कॉस्ट 8 रुपीज पर यूनिट पर एनम, ओके। अब अपने को पास ये तीन जानकारी है, सो यू कैन कैलकुलेट यो क्यू। टेबुलर फॉर्म से बनाया था तो 200 आया था आंसर, आप वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं। और सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 इंटू एनुअल यूसेज 1600 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 8, ओके। सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस। आप देख लीजिए, 400 इंटू 100, तो 4 का 2 बाहर आ गया और 200 का, सो द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 200। इसका मतलब है कि अगर ये प्रोड्यूसर, अगर उसकी ये कॉस्ट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर प्रोड्यूसर 200 यूनिट ऑर्डर करता है, तो उसको लीस्ट कॉस्ट, ही विल एक्सपीरियंस लीस्ट कॉस्ट, है ना। तो आप उसको एक बार में 200 यूनिट ही ऑर्डर करनी चाहिए, इससे ज्यादा ऑर्डर नहीं करनी चाहिए। अब मैंने कहा था एजम्पशन को हम देखेंगे, तो आप यहाँ पर अगर एजम्पशन को देखेंगे तो एजम्पशन हमारा क्या है, ये फॉर्मूला कब काम करेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला तब काम करेगा व्हेन द डिमांड इज नोन। इफ डिमांड इज नॉट नोन, so the economic order quantity will not से आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, डिमांड नोन होना चाहिए। दूसरी तरफ द लीड टाइम दैट इज अ टाइम बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर इज नोन एंड कांस्टेंट। ये रीऑर्डर लेवल के लिए है, एक्चुअली निकालने के लिए मैं अभी सिखाऊंगा। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि कितने दिन में हमारा जो है ऑर्डर आ जाएगा, जो हम ऑर्डर आज करेंगे तो कितने दिन में आ जाएगी, ये पता होना चाहिए, नोन होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर से ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है द ओनली कॉस्ट पर्टिनेंट टू इन्वेंट्री मॉडल आर द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग और स्टोरिंग इन्वेंट्री ओवर टाइम। दो ही तरह के कॉस्ट को हमने इसमें कंसिडर किया है, एक प्लेसमेंट कॉस्ट है और दूसरा होल्डिंग कॉस्ट है। इसके अलावा कोई भी हमने जो है वो नहीं माना है, कोई और तरह का कॉस्ट नहीं माना है। ईओक्यू का इस्तेमाल हम तब और कर सकते हैं जब हमारे पास डिमांड हमारा नोन है, कितना साल भर का इस्तेमाल है वो नोन है हमारे लिए पूरी तरह से। स्टोरेज कॉस्ट हम जानते हैं कि पर यूनिट स्टोरेज कॉस्ट कितना है, वो नोन है, एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, सो इन दिस वीडियो यहाँ पे मैं रुकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
रीऑर्डर क्वांटिटी एंड इसके साथ साथ रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल भी बताऊंगा। ओके, सी यू देन, थैंक यू ऑल।